Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanditam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanditamscha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, I want to express my sincere gratitude to our host Pankaj and Mataji. Thank you for organizing this program and inviting all of us to be part of this. I also want to thank our Anadi Roop Prabhuji for his friendship with Pankaj Prabhu and then coordinating this program. And I also welcome all the guests. Thank you so much for being here. This is a very auspicious month. This month is known as Kartik month, Damodar month. Of all the months, this is considered to be the best. And why is it considered the best? Because any devotional activity done in this month gives hundreds and thousands of times benefit. So generally we may not be able to do so much of devotional services because of our busy schedule, but at least in this month we should do something. So hearing about the Supreme Lord, hearing Krishna Katha is also devotional service. So the activity that we are doing right now is also part of devotional service. So I was thinking what to discuss on this particular day. I thought I'll discuss something very, very basic. So before I begin, I just want to ask you one question. What is the purpose of life? तो मेरा प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है जीवन का उद्देश्य क्या है? प्लीज वॉलंटियर कीजिए, जो भी आपको लगता है प्लीज बोलिए. जीवन का हेतु क्या है? हाँ, पता ही नहीं. जी रहे उद्देश्य नहीं पता. जी रहे हैं उद्देश्य नहीं पता. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट. यस. हाँ. टू लिव. ओके. यस. You wait. You tell me. You will know the answer. You tell me at the end. Okay. Yes. To finish our unfinished karmas from previous life. To finish our unfinished karma from our previous life. Okay. Very interesting. Anybody else? Have guns. Have guns. Ignore. Okay. Whom do you want to shoot? Okay. Anybody else? Yes. You were going to say something? No. Me? Yeah. This one thing comes to my mind.
purpose of, for me, the purpose of life is to find that true purpose where the life is leading, and then ultimately fulfill in a way that helps your community and the people around you. Meet as many as, join the dots, make the bigger picture, or be the dot in the bigger picture. Okay. Help the community, help humanity, and find the purpose in life. Okay. पंकज जी, आप नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? Same, help the community, do whatever you can do the best in your life to make sure that you will give back to the community and whatever. Do whatever best you can do and give back to the community. Okay. कैसा प्रश्न है ना, कभी हम इतने बिजी हैं हमारी लाइफ में कि कभी हम बैठ के सोचते भी नहीं है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या एक्चुअली. बहुत कम लोग ये चीज़ को एक्चुअली ये प्रश्न भी पूछते हैं कभी अपने आप को, क्योंकि लाइफ ही इतनी बिजी है. इनकम एक्सपेंस के बैलेंस शीट कैलकुलेट करने में पूरा जीवन निकल जाता है. तो कभी हम पूछते ही नहीं कि भाई हमें करना क्या है जीवन में एग्जैक्टली. और कोई शेयर करना चाहेगा? माता जी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी बोलिए. करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर जो ईश्वर ने ताम झाम के साथ भेजा उसको क्या करें? उसको क्या करें? बच्चों को कहाँ छोड़ें? मोह के साथ जोड़ के भेज दिया, उसको छोड़ नहीं सकते हैं. इमोशनल दे दिया, फिर लाइफ इतनी टफ भी है अब कि मतलब क्या करे आदमी. सब कुछ निभाना भी है, परमेश्वर को याद भी करना है, लेकिन सब जो साथ में चमगादड़ लगा के भेजी उसका क्या करें? उनको कहाँ छोड़ के हैं? तो आपका उद्देश्य ये है कि ये सब कुछ छोड़ देना, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं. नहीं, मतलब छोड़ना नहीं है, मतलब डिफिकल्ट है कि मतलब इस सब के अंदर रहकर परमेश्वर को याद. हाँ, तो आपका उद्देश्य है आपको परमेश्वर को याद करना है, लेकिन आप जंजाल में फंसे हुए हो. जंजाल में तो फंसे हैं और इसको छोड़ना भी नहीं है. उसको छोड़ना भी नहीं है. ओके, गुड, करेक्ट. छोड़ नहीं सकते क्योंकि इमोशनल इतना ज्यादा अटैचमेंट है. एक लेडीज को होता है बच्चों के साथ में, सब कुछ छोड़ दे, लेकिन बच्चे नहीं छूटते उससे. तो ये जो इमोशनल अगर कम कर देते प्रभु तो कुछ दया हो जाती. ये कठोर है. जीवन बड़ा कठोर है. मुझे लगता है. नहीं, अच्छा है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. और कोई माता जी, आप जो भी प्लीज. मैं पर्पसली ये प्रश्न पूछ रहा हूं ताकि आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सको, और जैसे जब बता रहे हैं ना वैसे आपको आंसर मिलेंगे थोड़े क्या हो रहा है लाइफ में. बताया उन्होंने, ठीक ही मतलब आपका भी वैसा ही है. लेडीज का तो यही है. अच्छा, लेडीज का कुछ और है इनसे? नहीं, बस बच्चे ज्यादा मोह में मर जाते हैं, मतलब लेडीज का तो यही है. अच्छा, हाँ. जो जीवन हम जी रहे हैं और उसमें जो अब हमने नया एक जीवन ऐड किया है, उसके लिए हर चीज सही तरीके से कर सके अपनी बेस्ट एबिलिटीज के साथ. जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें हमने नया जीवन ऐड किया है. बच्चे. अच्छा, ओके. उनको हम अच्छे से अपनी बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से उनके लिए हर चीज सही करें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं. हाँ, ओके, ठीक है. तो सबसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा है. हाँ, आर्या, यस, आर्या, यू वांटेड टू शेयर समथिंग. यस. हाँ, भक्ति, मुझे पता था. तो सीधा डायरेक्ट टारगेट पे लगेगा. ठीक है, भक्ति. बट थोड़ा पीछे आते हैं पहले, क्योंकि अभी संसार में फंसे हुए हैं. हाँ, मोह माया में फंसे हुए हैं, बीवी बच्चे हैं, फिर भक्ति कहाँ से लाए ना. ये प्रश्न समय से रहता है. हाँ, एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्शन है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ध्यानपूर्वक सुने सब लोग. बच्चे, आप आके यहाँ बैठ जाइए. अगर बच्चों को खेलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको जाने दीजिए, खेलने दीजिए. ये बड़ों के लिए क्लास है वैसे ही. तो
एक मिसकॉन्सेप्शन लोगों का रहता है, और वो ये है कि अगर भक्ति करनी है तो हमें सब कुछ छोड़ छाड़ करना पड़ेगा, जीवन में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। नहीं। इस मिसकॉन्सेप्शन की वजह से लोग भक्ति में आने से डरते हैं। उनको लगता है अरे मेरे तो अभी कितने सारे आकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं, मुझे तो बहुत आगे बढ़ना है, अगर मैं भक्ति में घुस गया तो ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा, बीवी बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, जॉब छोड़नी पड़ेगी, हिमालय में जाना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। गलत है ये गलत है। अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे, हाँ अपने तो सारे निभाने हैं ना फर्ज तो। हाँ, तो उसमें जब भगवत गीता में अर्जुन भी यही कह रहे थे कि भाई मुझे ये युद्ध नहीं करना है, मुझे घर जाना है, आप मुझे क्यों ये युद्ध करने के लिए उकसा रहे हो? तो अर्जुन ने क्या, कृष्ण भगवान ने क्या कहा? हाँ ठीक है, जाओ घर पे। नहीं, उन्होंने कहा आपको युद्ध भी करना है और मुझे भी याद रखना है। ये दो चीज करनी है आपको साथ में, युद्ध भी करना है और मुझे याद रखना है। तो लोगों को लगता है कि भक्ति करना मतलब सब कुछ छोड़ देना, जबकि ये, और संन्यास ले लेना। हाँ, ये कॉन्सेप्शन गलत है। भगवान ने कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया है कि आप सब छोड़ छाड़ के चले जाओ और मैं बस मुझे याद रखो, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। भगवान ने भगवद गीता किसको सुनाई? किसी सन्यासी को सुनाई? नहीं, किसी वैरागी को सुनाई? नहीं। अर्जुन को सुनाई। अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है और वॉरियर है, लेकिन गृहस्थ भी है। उनकी बीवी है, बच्चे हैं, भाई है, माँ है, पूरा परिवार है। अब भगवान चाहते तो किसी वैरागी को ले सकते थे ना, कि भाई इसका तो कुछ भी नहीं है, इसकी तो मोह माया नहीं है, ये सुन पाएगा अच्छे से भगवद गीता। लेकिन नहीं, भगवान ने किसको चूज किया? अर्जुन को, जो कि ऑलरेडी गृहस्थी में है, संसार में है, सारी जिम्मेदारी निभा रहा है, उसको भगवद गीता सुनाई गई। क्यों? क्योंकि भगवान एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि ये जो भगवद गीता का ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ, ये सिर्फ वैरागियों के लिए नहीं है, ये संसार में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए है। तो हमें संसार में रह के भक्ति करनी, और वो कर सकते हैं। हम लोग भक्ति करते हैं, ये सारे जो लोग देख रहे हैं, हम सब भक्ति में हैं, हमारे सबके जॉब्स हैं, सब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति करने का कारण क्या है? क्या फायदा होता है भक्ति करने से? मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मतलब बार बार जन्म नहीं लेंगे और फिर परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तो मतलब बार बार ये चक्र नहीं आएगा, फिर से जीवन नहीं मिलेगा, ऐसा ये सब होगा। तो मोक्ष भी तभी होगा जब सब कुछ छोड़ देंगे। हाँ, तो मोक्ष हमें इसलिए चाहिए, दैट मीन्स इस संसार में दुख है। हाँ, पीड़ा है, पीड़ा है ना, बहुत है। ये हम सब मानते हैं, पीड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में कम है शायद, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है। भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये जो मैंने जो ब्रह्मांड बनाया है पूरा, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे दुख नहीं है। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये अशाश्वत है, यानी आज है कल नहीं रहेगा। हर जगह दुख है। अच्छा, हर जगह दुख है, ये भगवान ने तो कह दिया दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन हम यहाँ ढूंढ क्या रहे हैं? सुख। हर इंसान को देख लो आप, उस जो कुछ भी वो कर रहा है। इसलिए मैंने सबसे पहले ये प्रश्न किया था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। एक्चुअली हमारे जीवन का उद्देश्य, हमें सुख चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? कि हम सुखी बन जाएंगे, शांति मिलेगी, संतुष्ट मिलेगा, पीसफुल होगा लाइफ, खुशी महसूस करेंगे हम अपने, पीड़ा तकलीफ नहीं होगी। ये है हमारा उद्देश्य। अब इस उद्देश्य को हम कहां ढूंढ रहे हैं? उस जगह में जहां पे पूरा दुख ही दुख है। भगवान ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम। तो आप सुखी हो सकते हो इस जगह पे? नहीं हो सकते। और हम देखते हैं, कुछ भी करते हैं हम, थोड़ा सा सुख, इतना प्रयास करना पड़ता है, इतना परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा सा सुख मिलता है और हम खुश हो जाते हैं। और वो थोड़ा सा ही होता है, क्षणिक, उसके बाद वापस तकलीफ, फिर वापस आप उसको
सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, फिर वापस थोड़ा सा सुख मिलता है, वापस वही प्रॉब्लम्स, कोई नई टेंशन आ जाती कोई नई टेंशन। बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, वो कहता है माँ बाप कहते हैं स्कूल जा बेटा, स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा तो तेरी लाइफ अच्छी रहेगी। फिर वो स्कूल में तो बोर हो जाता है, बोलता है जब मैं कॉलेज में जाऊंगा तब मैं फ्री हो जाऊंगा। तो कॉलेज में जाता है तो देखता है यार मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वहां पे भी दुख। फिर सोचता है मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। शादी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है वो सबको पता है कि नहीं? हाँ, उसमें मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। तो ऐसे हर स्टेज पे फिर कहेगा अब बच्चे हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बच्चे होते हैं, फिर बच्चों का भी जैसे माता जी ने कहा अटैचमेंट, मोह छूटती नहीं है ये। हाँ, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनकी शादी की टेंशन, इनकी शादी करवानी पड़ेगी। और फिर बुढ़ापा जाता है तो बुढ़ापा तो है ही तकलीफ वाला, पूरा हर जगह अपना शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। और एक दिन आ जाती है मृत्यु। अब मृत्यु आ गई, इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं किसको पता है कि नहीं? मोक्ष चाहिए हमें, बट हमारी जब मृत्यु हुई तो हम जाएंगे कहाँ, कौन सा डेस्टिनेशन मिलेगा हमें, इसका किसी को पता है? नहीं पता है ना। यूनिफॉर्म बदलती है, यूनिफॉर्म बदलती है, हाँ बिल्कुल यूनिफॉर्म बदलती है, लेकिन कौन से यूनिफॉर्म मिलेंगे ये हमें पता है? ना, वो तो नहीं पता है। कर्मों के हिसाब से मिलेगी। हाँ, कर्मों के हिसाब से मिले, हाँ कर्मों के हिसाब से मिलेगी, बिल्कुल सही है। वो ऊपर अकाउंटेंट बैठा। हाँ, अरे उनका तो अकाउंटेंसी बहुत जबरदस्त चल रहा है, हर एक काम का वो रिकॉर्ड है उधर। वो भी बनी है ना, वो चित्रगुप्त है। हाँ, वैसे एक बार हमने ड्रामा किया था, उसमें मैं चित्रगुप्त बना था। मेरे जो फ्रेंड थे वो यमराज बने थे, मुझे पता है उनका रोल क्या है। तो ठीक है, अभी हम सब कर्म कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमें नया यूनिफॉर्म मिलेगा। लेकिन अगर हमें पता नहीं है कि हमें कौन सा यूनिफॉर्म मिलेगा, हाँ, और हम कर्म किए जा रहे हैं, तो क्या ये सही है? या हमें क्या करना चाहिए कि हमें कुछ पता लगेगा हमारा क्या होने वाला है? क्योंकि देखो मृत्यु तो कंफर्म है। देखो इस दुनिया में ना 4 प्रॉब्लम है, 4 रियल प्रॉब्लम्स है लाइफ के, रियल प्रॉब्लम्स। हम कैसे जान सकते हैं कि ये रियल प्रॉब्लम्स है लाइफ के? हम किसी को पूछेंगे भाई इस दुनिया के आप रियल प्रॉब्लम्स बताओ, तो आप क्या कहोगे? पॉवर्टी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है, हाँ, करप्शन ज़्यादा है, ये सब चीज़ें आप बताओगे, साइक्लोन, फ्लड, ये सब। लेकिन शास्त्र के अनुसार रियल प्रॉब्लम उनको कहा जाता है जिसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम मेरे लिए है लेकिन दूसरों के लिए नहीं है, सबके लिए कॉमन है ये। दूसरा, कोई उस प्रॉब्लम को चाहता नहीं है, नोबडी वांट्स दैट प्रॉब्लम, ठीक है। और तीसरा, लेकिन सबको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लाइफ में। तो ये कौन से 3 क्राइटेरिया है? पहला, जो सबके लिए कॉमन है, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, सबके लिए कॉमन। दूसरा, कोई इसको चाहता नहीं है, नोबडी वांट्स दैट प्रॉब्लम, लेकिन नोबडी कैन अवॉइड दैट प्रॉब्लम। थर्ड वन, ऐसे कौन से प्रॉब्लम है आप सोच सकते हो? कैस करो। जीवन और मृत्यु। हाँ, भगवत गीता में भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म, मृत्यु डेथ, जरा मतलब ओल्ड एज, और व्याधि मतलब तकलीफें, डिजीजेस। ये जो 4 प्रॉब्लम्स है ना, ये सबको लागू पड़ता है, चाहे आप मिलियनर हो या फुटपाथ पे हो, चाहे आप पक्षी के शरीर में हो या जानवरों के शरीर में हो, किसी भी योनि में हो, ये 4 चीज सबको लागू पड़ती है, सबको फेस करनी पड़ती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके चक्कर में से निकलना मतलब मोक्ष। अब मोक्ष जो है वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। कहाँ कई लोगों को लगता है कि मैं स्वर्ग में चला गया तो मोक्ष हो गया, लेकिन आपको पता है स्वर्ग में भी जहाँ पे देवता रहते हैं वहाँ पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के अंदर हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको जिस क्रिएशन में हम रह रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ।
हम जिसमें रह रहे हैं उसको कहते हैं ब्रह्मांड, जिसके अंदर 14 भुवन है, प्लानिटरी सिस्टम, 14 प्लानिटरी सिस्टम्स। जब तक जीव इस 14 प्लानिटरी सिस्टम के अंदर है तब तक उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से जाना पड़ता है। कभी वो स्वर्ग लोक में जन्म लेता है, तो कभी पृथ्वी लोक में जन्म लेता है, तो कभी नर्क लोक में जन्म लेता है, अपने कर्मों के हिसाब से। किस तरह का शरीर मिलता है? 84 लाख यूनिफॉर्म्स हैं टोटल, 8.4 मिलियन स्पीसीज। ये सिर्फ यूनिफॉर्म्स हैं, इसके अंदर पॉपुलेशन, हर एक स्पीसीज में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, ठीक है। अब किस योनि में, यानी किस यूनिफॉर्म में मैं जाऊंगा, इसका डिसीजन कौन लेगा? कर्म के हिसाब से। हाँ, तो कर्म का डिसीजन कौन ले रहा है? कौन देख रहा है इसको? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का रोल पता है क्या है? वो सिर्फ आप जो कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रखता है। आपने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया। और जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा यातना शरीर में यमराज के पास जाती है। यमराज पूछते हैं भाई इसका क्या है रिकॉर्ड? जब चित्रगुप्त पढ़ते हैं आपका रिकॉर्ड यमराज के सामने, डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस, यस, पूरा आउटपुट होता है। और बेस्ड ऑन द इनपुट और द आउटपुट गिवन बाय चित्रगुप्त, योर नेक्स्ट डेस्टिनी इज डिसाइडेड। कहाँ जाओगे आप? उससे पहले मे भी आपको आपको नहीं, हमको शायद नर्क लोक में जाना पड़े, जहाँ पे हमें काफ़ी पनिशमेंट मिलने, बट एनीवे, इस तरह से हमारा डिसाइड किया जाता है कौन सा आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मैं इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त कैसे हूं? क्या मैं अगर अच्छे लोगों को, सारे ह्यूमैनिटी, सारे लोगों को हेल्प करूंगा तो क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? हाँ, नहीं होऊंगा। तो अभी सब लोग कह रहे थे ना कि जीवन का उद्देश्य है कि सबको, कम्युनिटी में सबको हेल्प कर रहे हैं। हाँ, जब हमें पता है तो इससे हमें मुक्त नहीं मिलेगा तो हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। संतावना मिलती है उससे कुछ। हाँ, कोशिश करने में क्या संतावना मिलती है, संतावना, यानी मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन तो मिलता है, लेकिन वो जो सेटिस्फैक्शन है वो टेम्पररी, क्योंकि भगवान ने कहा। लेकिन प्रश्न ये है कि मुझे इस चक्कर से ही मुक्त होना है, तो मैं कैसे मुक्त होऊंगा? देखो, 3 तरह की एक्टिविटीज होती है, 3 तरह की। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट यूनिफॉर्म है ना, वो कर्म से डिसाइड होता है। इसलिए कर्म क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, अगर हम रियली मुक्त होना चाहते हैं तो। कर्म 3 तरह के होते हैं। एक तो है कर्म, एक है विकर्म, और तीसरा है अकर्म। कर्म मतलब आप जब पुण्य कर्म करते हो, किसी को आपने मदद कर दी, किसी हॉस्पिटल खोल दिया, किसी गरीब को खाना खिला दिया, किसी को हेल्प कर दी, इसको कहते हैं पुण्य कर्म। दूसरा है विकर्म। विकर्म मतलब शास्त्रों के अगेंस्ट, जो शास्त्र में जो नियम दिए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए, उसके अगेंस्ट जाके आपको कोई काम करते हो तो उसको कहते हैं विकर्म। इसका रिजल्ट क्या होता है? दुख, जानवर योनि में जन्म, शरीर में क्या कहते हैं, लोग अच्छे जो नहीं दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? अगलीपन, अगली, ये दिस आर, और या क्रॉनिक डिजीज, कोई लीगल इश्यूज आपकी लाइफ में, हाँ, बच्चों के साथ प्रॉब्लम, हेल्थ के साथ प्रॉब्लम्स, माँ बाप के साथ प्रॉब्लम्स, रिलेटिव्स के साथ प्रॉब्लम्स, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये विकर्म से आती है। जब हम कोई भी काम शास्त्र का उल्लंघन करके करते हैं तो उसका परिणाम होता है पाप, और पाप का मतलब है आपको दुख सहन करना है आगे जाके, कोई भी यूनिफॉर्म हो। अगर आप कर्म करते हो, पुण्य कर्म करते हो, तो आपको जाके सुख अनुभव करना पड़ेगा। अब देखो, हम यहाँ पे सब बैठे हैं इतनी अच्छी सिचुएशन में, इंडिया में लोग किसे तकलीफ में है, दूसरे देशों में देखो कितने लोग तकलीफ में हैं, उनके कंपैरिजन में हमारी लाइफ तो काफ़ी अच्छी है, हज़ारों गुना अच्छी है। इसका मतलब है हमने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं। पुण्य कर्म के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो जब पुण्य कर्म करते हैं तो हमें अच्छी परिस्थिति मिलती है, और अगर हम विकर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो हमें
दुर्गति होती है हमारी, हम जानवर शरीर में भी जा सकते हैं। और जानवर शरीर में जाना मतलब दुख ही दुख। एक बार मैं बच्चों के साथ क्लास कर रहा था और मैंने ये सेम चीज़ कही कि इन द नेक्स्ट लाइफ इफ यू डू लॉट ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज विल बिकम अ डॉग। बच्चा खुश हो गया, बोलता है आई वुड लव टू बी अ डॉग, दे आर सो क्यूट, you know, look at their life, they get all the things without even asking. I don't mind being a dog. अब ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसी सिचुएशन है, बच्चों को कुत्ते बनने में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलियन कुत्ते, इनको इंडिया ले जाना चाहिए और इंडिया में दिखाना चाहिए कि कुत्तों की क्या हालत है कि नहीं? तब मैंने माँ बाप को वही कहा, उसी वक्त कहा मैंने, बोला इनको इंडिया ले जाओ आप, वरना ये सच में इनका फ्यूचर पता नहीं क्या होगा। लगता होगा कुत्ते को कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, उन्हें कुत्ता भी ऑस्ट्रेलिया में ही होना है, इंडिया में नहीं होना है। इंडिया में नहीं होना है। कुत्ता कुछ करता नहीं है ना। सच मानिए, कुत्ता चाहे इंडिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में, दुख हुआ है, दुख ही दुख है। दुख तो है, लेकिन उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सुबह उठ के 4 बजे काम पे जाना है, नहाना है, कपड़े धोने हैं, है ना? और अभी तो वो गाड़ी भी आती है। बच्चे को भूल जाता है। हाँ, बच्चा उससे दूर हो जाता है, उसको कोई इशू नहीं होता है, हाँ, है ना? और इंसान को तो लाइफ टाइम तक बच्चे साथ में रहते हैं, टेंशन है, आगे बच्चों की भी टेंशन उससे। हाँ। तो शायद उसको लगता होगा कि मतलब बच्चे को ना, ऐसा लगता है कि अच्छी लाइफ है, ऐसा लगता है, ऐसा दिखने में आता है। इसका रीजन ये है कि जो मनुष्य और जानवरों में अंतर क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। हम में और जानवरों में फर्क क्या है? अगर मैं आपको पूछूं तो आप क्या कहोगे? हम में और जानवरों में क्या फर्क है? जानवर ईश्वर का भक्ति नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल, जानवर भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। सिर्फ मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जहाँ पे उसके पास ऐसा बुद्धि है, ऐसी चेतना है, जहाँ पे वो प्रश्न पूछ सकता है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं जब मरूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, किस तरह के कर्म मुझे करने चाहिए, पाप कर्म क्या होते हैं, पुण्य कर्म क्या होता है, भक्ति क्या होती है, क्या भगवान है, अगर है तो मेरा उनके साथ क्या संबंध है। ये जो प्रश्न है ना, ये सारे प्रश्न ये सिर्फ एक मनुष्य ही पूछ सकता है। जानवरों में ऐसा बुद्धि दिया ही नहीं गया है। उनको बुद्धि किस चीज की दी गई पता है? सिर्फ 4 चीजों के लिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुना। हितोपदेश में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनाम सामान्य मेतद पशु भी नरानाम। यानी आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, मैथुन करना मतलब बच्चे पैदा करना, और भय मतलब डरना या अपना बचाव करना। ये 4 चीज जो है ये मनुष्य और जानवरों में समान है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न ही न पशु भी समान। क्या है विशेष? क्या है? धर्म, धर्म का पालन करना, ये मनुष्य में विशेष है। और जो मनुष्य धर्महीन है, धर्म का पालन नहीं करता, शास्त्र कहता है पशु भी समान। भले वो मनुष्य के शरीर में है जानवरी, क्योंकि उसकी क्रियाएं तो यही है, खाना, सोना, मैथुन करना और अपना बचाव करना। अलग क्या है? कुछ भी नहीं। जानवर रास्ते में उसको जो भी मिलता है वो खा लेता है। मनुष्य क्या करता है? घर पे लाएगा, सब्जियां काटेगा, खाना बनाएगा, टेबल पे बैठेगा, नाइफ फॉर्क सब लेके खाएगा। सोफिस्टिकेशन डिफरेंट है, काफी सोफिस्टिकेटेड होता है मनुष्य का काम, लेकिन जो एक्टिविटी है बेसिक वो तो सेम ही है। खाना, सोना, एक कुत्ता कभी कभी इसको जगह मिली तो सो जाता है वो, लेकिन मनुष्य बेडरूम होगा, एसी होगी, अच्छा बेड होगा, मैट्रेस होगी, ब्लैंकेट होगा, फिर वो सोएगा। सोफिस्टिकेशन काफी है, लेकिन एक्टिविटी सेम। उसके बाद भी नींद नहीं आती, फिर भी नींद नहीं आती है। रास्ते में आ जाती वो अलग बात है कि इतना सब करने के बाद भी नींद नहीं आती है, और जानवरों को कुछ नहीं किए बगैर नींद आ जाती है। मेरा मतलब ये है कि अगर हम धर्म नहीं पालन कर रहे हैं या धर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। ये थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन शास्त्र है ये बता रहा है कि आप में और जानवर में कोई अंतर नहीं रहेगा अगर हम धर्म के हीन हो गए हैं, अगर हम धर्म का पालन नहीं करते। और धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से होती है।
इंसान को ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं जब मरूंगा तो क्या होगा, इसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ से शुरुआत होती है धर्म की। इसके बाद इंसान इसके इस प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेगा। तब उसको आंसर कहाँ से मिलेंगे? शास्त्र से। शास्त्र को पढ़ेगा, अपने जीवन में अप्लाई करेगा, तभी वो मनुष्य के स्टेट में आता है। वरना 2 हाथ 2 पैर होके, उसको सिर्फ कहते हैं 2 legged sophisticated animal, that's all। द्विपद पशु, ये शास्त्र में कहा गया है, द्विपद पशु, जिसके 2 पैर हैं लेकिन है पशु। तो हमारे जीवन का उद्देश्य, हमने वो सबने अलग अलग कहा, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य हमें सबसे पहले तो जानना है कि हम हैं कौन, हमारा अस्तित्व क्या है। अगर हम किसी को भी पूछें कि आप कौन हो, तो जवाब क्या देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, आप क्या कहोगे? यस, इंसान है, हम इंसान हैं। या हम अपने नाम से कहेंगे आई एम सो एंड सो, या पोजीशन से कहेंगे आई एम सो एंड सो इन दिस पोजीशन। लेकिन ये जो सारे जो डेजिग्नेशंस हैं, ये किसको लगे हुए हैं? शरीर को। लेकिन हम ये शरीर नहीं है, हम हैं आत्मा। आत्मा मतलब वो नहीं जो आत्मा सीरियल आती थी टीवी में। पहले ना एक बार सीरियल आती थी, आपको पता होगा, आत्मा सीरियल। मैंने एक बार क्लास में कहा हम सब आत्मा, डर गए लोग, अरे क्या बात कर रहे हो, हम भूत हैं? नहीं, वो आत्मा नहीं। आत्मा मतलब सोल, जो कि कभी मरता नहीं है, जो सनातन शाश्वत है। हम भगवान के अंश हैं, वो आत्मा की बात करी जाएगी। जब हम मरते हैं तो हम नहीं मरते हैं, हम सिर्फ शरीर छोड़ते हैं। ये शरीर छोड़ के कोई दूसरा शरीर अपनाएंगे, और वो जो शरीर है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म, अलग अलग टाइप के। ऐसे 8.4 मिलियन यूनिफॉर्म्स हैं। हमारे कर्म के अनुसार हमें वो ऐसा यूनिफॉर्म मिलेगा। जैसे आपको उदाहरण तौर पे मैं बताऊं, जैसे कि अगर कोई इंसान है, उसको सोना बहुत पसंद है, दिन में 14 घंटे 15 घंटे सोता है, तो प्रकृति क्या करेगी? प्रकृति कहेगी मनुष्य शरीर में इतना सोना ठीक नहीं है, मैं आपको ऐसा शरीर दूंगा जहां पे आप 6 महीने लगातार सो पाओगे विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ये जो जानवर होते हैं ना, पोलर बेयर, पाइथन, ये 6 महीने हाइबरनेट करते हैं, नोबडी डिस्टर्ब्स देम। तो हमारे जैसी इच्छाएं हैं, जैसे हम कार्य करते हैं, उसके अनुसार हमें शरीर मिलता है। तो मैंने जो 3 चीज कही थी, कर्म जो कि है, कर्म मतलब पुण्य कर्म, विकर्म मतलब उसके ऑपोजिट पाप कर्म। अब तीसरा है अकर्म। ये अकर्म क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम इस दुनिया में कुछ भी कार्य करते हैं, उसका हमें रिएक्शन मिलता है। देयर इज एक्शन एंड देयर इज अ रिएक्शन। इफ यू डू गुड एक्शन, there is a good reaction for which you will have to enjoy. If you do a bad action, a sinful action, the result is going to be a bad reaction for which you will have to suffer. Okay? But is there any activity which you do and there is no reaction? Is there any such activity in this world where you do something and there is no reaction? There is, and those activities are called akarma, no reaction, no reaction. तो अगर हमें मुक्त होना है तो हमें ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं है। अगर आप अच्छे कार्य भी करते हो, समझ करो आपने बहुत अच्छा जीवन जिया है, सबको हेल्प की है, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कोई पाप कर्म नहीं किया है, तो भी आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपको जन्म लेना पड़ेगा उस अच्छे कर्मों को भुगतने के लिए। उस अच्छे कर्मों का जो सुख आने वाला है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं करना है, तो भी आपको भुगतना पड़ेगा। कई लोग इस दुनिया में हैं जो इतने अमीर हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, पैसे आ रहे हैं उनके घर पे, कुछ भी नहीं करते हैं, यानी एक फोन उठाया और $1 मिलियन बैंक में। ऐसे ऐसे लोग हैं। क्यों है? कर्म, अच्छे कर्म इतने हाई है कि उनको वो सुख लेना ही पड़ेगा इस जन्म में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो
दिन रात ऑलमोस्ट 24 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन क्या कमाते हैं? कुछ भी नहीं। इंडिया में बहुत देखने को मिलता है। क्यों? पाप कर्म। तो ये जो पुण्य और पाप का जो है ना चक्कर, वो चलता रहता है, और ये आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त नहीं कर सकता। अगर आपको मुक्त होना है तो आपको अकर्म करना पड़ेगा, और अकर्म मतलब भक्ति करनी पड़ेगी। जहां पे आप सब कुछ भगवान के लिए करते हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो, उस कार्य में आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलता। जब अर्जुन ने युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ाई की, सबको, अपने परिवार वालों को मारा भगवान के ऑर्डर पे। भगवान ने कहा आप युद्ध करो, इसका जो रिएक्शन आएगा वो मैं देखूंगा। अर्जुन ने मारा सबको। आज 5000 साल हो गए, फिर भी हम अर्जुन और कृष्णा के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने न पुण्य कर्म किया न पाप कर्म किया। उन्होंने सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने जो कहा वो किया, इसलिए उनमें कोई रिएक्शन नहीं था। आप समझ रहे हैं बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए यहां पे आती है भक्ति की इंपॉर्टेंस। अगर हमें मुक्त होना है, एक्चुअली मुक्त होना तो बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बेसिक है। एक्चुअल भक्ति का रीजन है हमें भगवान से प्रेम, हमारा जो भगवान की तरफ जो प्रेम है उसको वापस जागृत करना है, जो हम भूल गए हैं अभी। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हमारा भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध है जो हम भूल गए हैं इस जगत में आके। माया ने हमें पकड़ लिया है, हम वो भूल गए, तो हमें वो संबंध वापस जागृत करना है। इसलिए हम भक्ति करते हैं। भक्ति करने की बहुत सारी क्रिया है। अब इस छोटे से क्लास में मैं आपको काफ़ी कुछ बता नहीं सकता, लेकिन इसकी शुरुआत होती है भगवान का नाम लेने से। जब आप भगवान का नाम लेते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सीधा भगवान की पुकार है। आप भगवान, इसको सिर्फ रटने से आपके अंदर भगवान की तरफ जो प्रेम है, आपका जो शाश्वत संबंध है, वो जागरूक होता है। ये भक्ति की शुरुआत है। भगवान के बारे में सुनना और भगवान का नाम लेना, ये भक्ति की शुरुआत है। इसको करते करते धीरे 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 सब कुछ समझ में आने लगता है, शास्त्र समझ में आने लगता है, और उसके अनुसार हम अपने क्रियाओं को ऐसे कर सकते हैं जिससे हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में से मुक्त हो जाएंगे और वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये कार्तिक का महीना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है। इस महीने में भगवान कहते हैं, नॉर्मली तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमें जितनी की उतनी हमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन इस महीने में भगवान कहते हैं कि इस महीने में किसी ने मेरे लिए थोड़ी सी भी भक्ति की, मैं उसको हजारों गुना बेनिफिट दूंगा। सोचिए, क्या मेगा सेल चल रही है इस महीने। भगवान ने एक मेगा सेल चालू की हुई है। इस महीने में कोई भी मेरी भक्ति करेगा, कोई भी मेरा नाम लेगा, कोई भी मुझे दीप भी अर्पण करेगा, मैं उसको हजारों गुना बेनिफिट दूंगा इस महीने में। और इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, ये कोई पुण्य कर्म नहीं है। हमेशा समझना चाहिए भक्ति और पुण्य कर्म अलग चीज है। कई बार लोगों को लगता है कि मैंने बहुत पाप किए यार, मैं मंदिर चला जाता हूं, एक दिन में मंदिर चला जाऊंगा तो मेरे सारे पाप निकल जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, को भक्ति करनी पड़ती है। या कोई बोलते मैंने बहुत पाप किया, मैं कुछ अच्छे कर्म कर लेता हूं। अच्छे कर्म बुरे कर्मों को काट नहीं सकता। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्मों का एक अकाउंट होता है, बुरे कर्म किए उसका एक अकाउंट होता है। 2 अकाउंट्स होते हैं आपके। और अगर अच्छे कर्मों का अकाउंट ज्यादा है तो आपको सुख भोगना पड़ेगा, और अगर बुरे कर्मों का अकाउंट ज्यादा है तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन ये ये जो अकाउंट है ना, ये अलग अलग अकाउंट है। ऐसा नहीं है कि पुण्य कर्म किया तो मेरे पाप कर्म कम हो जाएंगे, या पाप कर्म करूंगा तो मेरे पुण्य कर्म कम हो जाएंगे। नहीं, आपको दोनों करने हैं, दोनों भोगने पड़ेंगे। लेकिन क्यों टेंशन ले हम इसकी? भक्ति करिए, भक्ति करेंगे कोई रिएक्शन नहीं है। और जैसे मैंने क्लास में कहा, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आप जो कर रहे हो, जॉब, स्कूल में जाना, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस, जो कुछ भी है, ये सब आप करते रहिए। जैसे अर्जुन को कहा गया था, करना क्या है? सिर्फ भगवान को आपके जीवन में ऐड करना है। थोड़ा सा समय निकालिए, रोज भगवान का नाम लीजिए, भगवान के बारे में सुनिए। हाँ, इससे क्या होगा कि आपके धीरे 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 आप मोक्ष की तरफ जाओगे। मोक्ष मतलब अल्टीमेट मोक्ष है, जहाँ पे आप भगवान के प्रति आपको प्रेम जागरूक हो गया है। ये है अल्टीमेट मोक्ष।
बाकी सब यहाँ से मुक्त होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो तो सब बाय प्रोडक्ट्स है, बट एक्चुअल अल्टीमेट लिबरेशन इज दैट व्हेन यू हैव डेवलप्ड योर ओरिजिनल लव फॉर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। और वही करने के लिए हम ये सब ऐसे सत्संग क्या करते हैं, जाते हैं, शास्त्र को डिस्कस करते हैं ताकि लोगों को पता लगे, और भक्ति की क्रियाएं करते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे आप लोगों को बताना था। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो हम 5-10 मिनट ले सकते हैं, वरना वी विल डू अवर दामोदर अष्टकम। आज का महीना स्पेशल महीना है, तो हम एक स्पेशल भजन भी गाते हैं और भगवान को हम दिया अर्पण करते हैं। ठीक है, आई थिंक विल स्टॉप हियर इफ देयर इज नो क्वेश्चन। या विल कंटिन्यू विद इट। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको और भी इंटरेस्ट हो तो हम लोग रेगुलर क्लासेस भी करते हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। दिस विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Rasikananda Prabhuji, for such a हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच रसिकानंदा जी, आपने इतनी अच्छी हमें क्लास दी और हमारी आंखों को आपने खोला। बहुत सारे हमारे डाउट्स थे जो आपने क्लियर करे। और जैसे इन्होंने बताया, ये 2 स्ट्रीट पीछे ही रहते हैं आपके मिडलैंड में ही, और इनके घर में हर सैटरडे भक्ति वृक्ष होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं भगवत गीता के ऊपर, श्रीमद् भागवतम जी के ऊपर। तो ये इवनिंग में होता है हर सैटरडे अराउंड आई थिंक 6 o'clock, 5 o'clock। तो अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना हो, प्लीज़ फील फ्री टू कम। एक बार आप जाके देखिए, अगर आपको आनंद आए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कभी भी समय हो, आप आई थिंक सब मिडलैंड में रहते हैं, इसी एरिया के आसपास ही हैं, तो प्लीज़ एक बार आप प्लीज़ जाके देखिए। और भी अगर मन में कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ को लेके, आप इनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम दामोदर अष्टकम करेंगे। जैसे